You will copy it as it is. Plus इसको ब्रेक कर लेंगे 2H plus 2Cl minus gives plus 2Cl minus. insoluble को ब्रेक नहीं करते plus CO2 plus what? ये तो आयोनिक है बट इनसॉल्यूबल है इसलिए ब्रेक नहीं किया. इनसॉल्यूबल है आयोनिक तो है बट उसके आयंस आर नॉट फ्री टू मूव. अब क्या कट गया? एंड व्हाट इज लेफ्ट इज द आयोनिक. ओके हाँ ये मैं नहीं कर रहा जी. या इट्स सॉल्यूबल. या ऑल क्लोराइड्स आर सॉल्यूबल एक्सेप्ट सिल्वर क्लोराइड एंड लेड क्लोराइड. अब ये मैं हटा रहा हूं. हाँ State 2 processes which release carbon dioxide. यार ये easy है. Respiration, combustion. Name a process that removes. Name a process that removes carbon dioxide. Photosynthesis removes carbon dioxide. State 2 process के नीचे यार. Name 2 process which release carbon dioxide is respiration, combustion, fermentation, decay of organic matter. Carbon dioxide is a greenhouse gas. What is the meaning of the term greenhouse gas? A gas that can absorb infrared radiations. Yeah, a gas that can absorb infrared radiation. अच्छा अब मैं अगर पूछूं what is a greenhouse effect फिर क्या बोलोगे? Warming of the Earth's surface by the re-emitted infrared radiations by greenhouse gases present in the atmosphere. Name another greenhouse gas and give a natural source. Methane by the incomplete bacterial decay of vegetable matter under what? Yeah. Explain why farmer adds fertilizer to increase crop yield. तो सही है. Ammonium sulfate can be prepared by adding. ये कर लिया यार, है ना? Give the formula of the iron in calcium hydroxide which causes it to be alkaline. ये हो गया था उससे. ओके अब ये भी हो गया है. सही है. अब ये मसला नहीं है ना. और पेपर क्रोमेटोग्राफी में अब कोई मसला है? और आपको मैंने कल वो भी बता दिया था. क्या एक क्वेश्चन भी कराया था क्रोमेटोग्राफी का. लास्ट वाला पहले कर लिया था. सो वो वाला इसलिए कराया था ऑल्दो इट वाज एन एटीपी क्वेश्चन बट आई डिड इट आपको पहले से. आपने सेपरेशन टेक्निक्स पढ़ी? वाह अभी पूछते ना आपसे. ड्रॉ अ डायग्राम टू शो द apparatus तो आता है. Which of the metal A to E is present in the mixture? यार ये हो जाएगा. Suggest why a locating agent may need to be used. If the ions are colorless, the locating agent will make the colorless spots colored. Aqueous ammonia is added to copper sulfate until ammonia is ये करें जरा. बेटा जगह मुस्तफा क्यों जा रहे हो बच्चा? अच्छा यार अब तो बता दो कॉपर सल्फेट में एक्वस अमोनिया या NaOH डालना इज प्रेसी. एक्वस अमोनिया सप्लाइज व्हाट? OH. इधर कौन सा आयन होगा? Copper ion reacts with, from where this OH is coming? Aqueous ammonia. और क्या बना? Copper 2 hydroxide बना. तो पहले क्या बोलेंगे? Aqueous ammonia में क्या होता है? pale blue precipitate, but excess में वो क्या हो जाती है?
pale blue precipitate that dissolves in excess to form a deep. अनस तुम्हें तो आता है, उसको नहीं आता है बेटा, तुमने तो किताब खा गया हो, वो तो बेचारी मासूम अल्लाह मियां की गाय है. So pale blue precipitate that dissolves in excess of aqueous ammonia to form a deep blue solution. Write the ionic equation with state symbols. मैंने कर दिया. अब ये सही है ना? This is shit, right? नहीं, मैंने कोई एक सवाल एडीबी का नहीं दिया. खुदा की कसम, ये किसका है? पेपर 2 का है. मुझे देना होगा तो मैं आपको बोल के दूंगा ना, मैं आपको क्यों तंग करूंगा. अब बहुत सारे बच्चे बोलते हैं यार सिंपल डिस्टिलेशन कौन पढ़ के जाएगा, वो तो एडीबी में आएगा. ड्रॉ करने भी आ सकता है, लिख लो, लर्न. ड्रॉ करने भी आ सकता है ये डायग्राम. लर्न टू ड्रॉ दिस डायग्राम. और पहले तो मुझे आप बताएं व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ डिस्टिलेशन. लिख लो. It's a process of boiling a liquid and condensing the vapors produced. लिख लो. Distillation is a process of boiling a liquid. It is a process of boiling a liquid and condensing the vapors produced. It is a process of boiling a liquid and condensing the vapors produced. Boiling takes place in the distillation flask. Boiling ये general बता रहा हूँ, फिर मैं इसका आंसर बाद में बता रहा हूँ. Boiling takes place in the distillation. क्या लाए हो? आलू छोले पूरी बोरी उठा के. Boiling takes place in the distillation flask. एक तो मुस्तफा है ना, इसमें बड़ी गड़बड़ है, हंसता बिल्कुल भी नहीं है, बस यूं मुंह devoid of क्या any expression. अच्छा, boiling takes place in the distillation flask. कहाँ है distillation flask? यहाँ. Whereas condensation of vapors occur in the क्या? Liebig नहीं, Liebig condenser बोलते हैं इसको. And the condensation of boiling takes place in the distillation flask, ion. And the condensation of vapors occur in the Liebig condenser. अब आपको पता है कि सी वाटर में क्या क्या चीजें हैं. नमक. Boiling takes place in the distillation flask, whereas condensation of vapors occur in the Liebig condenser. Guys, just stop it, bacha. अब इसका स्पेसिफिक आप बोलो. Now explain how distillation purifies seawater. When seawater is heated, water changes into क्या? Water boils. Water evaporates and boils. जो भी कहना है आपको. हाँ? When seawater is heated, water being volatile evaporates and enters into the क्या? And enters into the Liebig condenser, where it turns from gas to क्या? Liquid. Whereas salts have a higher क्या? Boiling point. Whereas salts having what? Higher boiling point than क्या? Then water will be left behind in the distillation flask. Will be left behind in the distillation flask. What is the difference? ये distillation, इसको बोलते हैं distillation flask. ये Liebig condenser. What do you call this? Receiver flask. What do you call that? Receiver flask. And what do you call this? Distillate. The liquid that collects is called distillate. Water jacket
and water enters from down. Water inlet should be at the bottom and water outlet should be at the kya? What is the difference between this and fractional distillation? Idhar kya hota hai? Fractionating column filled with glass beads, because glass beads will provide a large what? Surface area. अब मैं चाहूंगा ये वाला सवाल जो मैंने आपको करवाया है कि नहीं, आप गेस कर दे या नो। अब अगर ये पूरी तरह आप ना कर सके तो मैं फेल तो होऊंगा, आप बाद में नहीं, मैं पहले हो गया। करें इसको आप जल्दी से। चलो एक बात तो कंफर्म हुई कि पेपर हो रहा है, वरना बहुत सारे बच्चे स्कूल से घबराए हुए थे कि रिजल्ट्स भेजेंगे और हम तो फेल हो जाएंगे क्योंकि हमारा तो मॉक अच्छा नहीं था। अब ये बात नहीं हो सकती क्योंकि एटलीस्ट एक पेपर, द मेजर पेपर इज गोइंग टू हैपन टुमारो। इवन अगर पेपर 1 नहीं भी होता, अब तो रिजल्ट किस पर बेस्ड है? पेपर 2 पे। चलो, और पेपर 2 इतना मुश्किल नहीं है, जल्दी करें। नहीं है, बिकॉज हमारे यहाँ पता ही नहीं चलता कोविड है कि नहीं, क्योंकि देयर इज, आई कांट बिलीव। कहाँ तो हम हर बार जून जुलाई में ना। गाइस, मैं हाथ जोड़ता हूं आपसे कि ये कर दे मुझे। गाइस, फॉर गॉड सेक, अली कर दे यार। यार वो उसका आपने वेंट नीचे क्यों कर दिया है? उसका वेंट, गर्ल बेटी उसका वेंट ऊपर करवाओ यार, क्या हो रहा है? अच्छा सही, अच्छा ये मूव कर रहा है, अच्छा ओके, इट्स ओके। और अयान वो भी मूव कर रहा है ना बेटा, वो वाला वेंट। ओके गाइस, बेटा आयोनिक ऑफ एसिड और बेस इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन। आप क्यों नहीं लिखते डायरेक्ट? H प्लस प्लस क्यों होएगा? वो कैंसिल हो जाता है ना सब। H प्लस प्लस OH माइनस गिव्स H2O। सपोज यहाँ 2 होता, फिर भी वो कॉमन निकल के क्या हो गया होता? कैंसिल। The graph shows this. What volume of acid has been added when the pH is 7? हाँ, गलत। 20। अब तो देखो नकवी, आप लोग सीरियस नहीं हो। अगर प्योरेट और पिपेट है तो एग्जैक्ट वॉल्यूम लिखना जरूरी है, 0.0। अब मुझे कॉन्सेंट्रेशन निकाल के दिखाइए। अब अगर आपसे 3 स्टेप्स नहीं होते तो फिर कल बहुत बुरा होने वाला है कुछ। 3 स्टेप्स कर दे, मैं अल्लाह के वास्ता दे रहा हूं आप। बेटा वो ना यूज करे तो बेहतर है, फंस जाए तो यूज कर ले। और फंस क्यों जाए? इतने सवाल के बाद अगर आप फंस जाए तो क्या फायदा हुआ कराने का? वरना मैंने बताया था CA इंटू VA अपॉन CB इंटू VB, वो बाद में लास्ट रिजॉर्ट है आपको। हाँ, उस फॉर्मूले का मसला ये आइदर क्या हुआ बेटा? गर्ल, हाँ यू कैन, यू लेफ्ट एवरी टाइम, तो इस बार क्या मसला होगा? हाँ, आई नो दैट यू लव कैम, आई नो। अच्छा, your love for chemistry is since your childhood, I know. Your mother told me. So she used to say, "Mani, kem, bye, mazak kar." And even better. Excuse me. तुम भी जा रहा है? Guys. Guys, हो गया। मैंने ये सवाल लास्ट पार्ट के लिए किया, इसके लिए नहीं। गाइस,
कौन मुझे आंसर बताएगा? जारा, तुम्हारा क्या आंसर आ रहा है? तुम क्या लाए? हाँ, आंसर। हाँ, 0 point, that's wrong. यार क्या कर रहे हो यार? 0.169 आ रहा है, तो उसका क्यों ऐसा कुछ बोल रहा है? हाँ, उसने 1 मोल लिया होगा। फर्स्ट स्टेप, सल्फ्यूरिक एसिड का हेल्पर ढूंढ लिया। अजीत बेटा स्टॉप टॉकिंग। अच्छा आंसर, ओ एक मिनट, पहले किसका निकाला मोल? पहले NaOH का मोल निकाला। कैसे निकलेगा NaOH का मोल? एक्सक्यूज मी गाइस, NaOH का निकलेगा N is equal to C times V। हाँ, ये बेचारा थक के चला गया, बोला इतनी मेहनत से मैंने इमामत की है, एक लफ्ज नहीं लिखता बस चला जाता है। ये कौन सी स्कूल में है? प्राइवेट है? ओहो बेचारा। कार्बन का क्या है नंबर? सॉरी, कॉन्सेंट्रेशन क्या है? 0.15 एंड 45 है। 0.15 into guys 45 over 1000 क्या हो जाएगा? फिर NaOH और इसका क्या रेशियो है? 1 of sulfuric acid H2SO4 is to, so it's 1:2. Now if it is 1:2 तो NaOH हो गया 0.00 0.003375। Okay बेटा, पता या लिंक इज बीइंग सेंट। हाँ तो बता दें। अच्छा जी, अब आपको सल्फ्यूरिक एसिड के मोल्स मिल गए, अब क्या निकालना है? 0.0033 और वो वॉल्यूम लेंगे जो pH 7 वाला होगा, 20 अपॉन। अब यहां देखें, मेन चीज ये है, the experiment was repeated using what? Ethanoic acid। अब दोनों में फर्क पहले समझे, सल्फ्यूरिक और इथेनोइक पे क्या फर्क है? इथेनोइक में there is one ionizable H because it's monobasic, whereas sulfuric acid has 2 ionizable H pluses। अब आपको इससे कुछ आइडिया आता है कि आंसर में क्या आएगा? The experiment was repeated using ethanoic acid। अब the volume of ethanoic acid required to neutralize sodium hydroxide was twice, क्योंकि it has less H plus। Why? It has half the H plus। क्यों? So the volume of यार प्लीज सुन तो लो मैं क्या कह रहा हूं। वो कह रहे हैं जब आपने इथेनोइक एसिड यूज किया तो आपको ज्यादा इथेनोइक एसिड चाहिए टू न्यूट्रलाइज NaOH। क्यों? इथेनोइक एसिड का एक मॉलिक्यूल सिर्फ एक H प्लस रिलीज कर रहा है,
तो 1H plus what? Whereas in sulfuric acid, you get 2H plus. So you will need less sulfuric, but you will need more kya? You need more ethanoic acid. Why? सही है ना नकवी? So guys, भाई आप इथेनोइक तो एक है, one is attacking OH, but इधर क्या है? 2 is attacking 1. So आपको कम एसिड चाहिएगा with sulfuric, क्योंकि वो डबल क्या रिलीज करता जाएगा H प्लस, और वो न्यूट्रलाइज करता जाएगा. और इधर क्या है इथेनोइक में? इथेनोइक में क्या है? 1H प्लस है, तो आपको ज्यादा इथेनोइक चाहिए to neutralize the alkali, because it doesn't provide, it provides half the number of H pluses, whereas sulfuric acid is providing what? Double, twice the number of H pluses. कुछ आइडिया समझ आ रहा है? तो याद रखेंगे तो क्या बोलेंगे? Ethanoic acid is a monobasic acid, therefore it provides only क्या? One mole of ionizable H plus. नहीं बैठो. अच्छा बैठो. Per mole of what? Per mole of acid. Whereas आप लोग नहीं सुन रहे. Suggest the value of pH after excess ethanoic acid has been added. अब अगर आप excess में जाएंगे तो it shouldn't finish here. It's a weak acid, so somewhere here, right? So it should be 5 or 6. Sulfuric acid is present in acid rain. Suggest how sulfuric acid is formed in the atmosphere. Abhi kara. When you burn coal, sulfur burns to make, then sulfur dioxide to make sulfur trioxide. Then sulfur trioxide reacts with rainwater to make stage 1 effect of acid rain on human skin. Skin irritant, likh lo please. Skin irritant also irritates eye, irritates nose, irritates mouth. Kuch bhi likh sakte ho. Acid rain, not sulfur dioxide. Likh lo yaar, it irritates skin, irritates eye. Compound with formula CCl2, yes sir. It's called, give the general name for these shits. Chlorofluorocarbons. They are termed as chlorofluorocarbon. Explain why it is important that the ozone in the stratosphere doesn't become too depleted. It absorbs ultraviolet light, preventing too much UV light from striking Earth. It absorbs ultraviolet light, preventing too much light striking Earth. So prevents what? Skin, देखो cancer तो बचा. Skin cancer incidence को रोकेगा. तुम्हारा सवाल आ गया. अच्छा जी. What is meant by the term photochemical reaction? A reaction that is catalyzed by light. Yeah. A reaction that is catalyzed by light kar do kafi hai. Construct the equation for the breakdown of ozone into its molecule. O3, O2, बस. और बैलेंस करना है तो यहाँ 3, यहाँ 2. अच्छा, अब जो ये करेगा, मैं तो समझा रहा हूं. अब पहले आपको मैंने पीछे एक करवाया था. अब आप कितना इसको सोच के कर सकते हैं, मुझे कॉल करके दिखाएगा ये जल्दी. I'll do it, but पहले आप में से किसकी सही आंसर आता है ये देखते हैं.
हो गया? एक मिनट मैं पहले समझूंगा आपसे, ठीक है ना? अगर आपने गलत किया पहले क्या, अच्छा एक मिनट पहले, नहीं अभी मैं नहीं बता रहा जी बेटी, रिंगा रिंगा नहीं खेलना, देखो मजाक कर। अच्छा बाहर क्यों कॉल करने जाते हैं? मैं थोड़ी सुनेगा तुम्हारा कॉल, प्राइवेसी। अच्छा अब मेरी आवाज को तो मैं नजर लगाओगी, बंद हो जाएगी। कंप्लीट द आयोनिक इक्वेशन। यार मुझे लगता है कोई भी नहीं कर सका होगा। ओके अब तुम पहले बताओ क्या लिखा तुमने? पहले किसको बैलेंस किया? H प्लस कैसे किया? यहाँ 2 है तो पहले नंबर ऑफ एटम बैलेंस हो गए। अब कौन? दोनों साइड है, तुम बताओ। 3Fe2 प्लस हो जाए, यहाँ 3 उधर 2, नो दोनों पे 2 2 होगा। क्यों? एक्सक्यूज मी, क्या इस तरह चार्जेस दोनों तरफ कैसे बैलेंस होंगे? तो 2 2s are 4 and 2 plus ये, so 2 2s are 4 plus 2 1s are 2, 2 plus, that total makes what? 6 plus. अब वहां भी 6 plus charges on both sides should be same. तो यहां 2 आया तो 3 2s are, हाँ अब चार्जेस भी बैलेंस करने होते हैं जी। बस सही है, जिसको समझ आ गया वो सही है। आगे एक मार्क का ही तो है, कौन सा तीर मार लेंगे? अच्छा हाँ लेकिन यार अब बहुत हो गया ना, मैंने तुझे समझाया है 50 बार, अब हो ही नहीं रहा है, मैं क्या करूं? हाँ ये सवाल के बाद ब्रेक होगी इंशाअल्लाह व तआला। अच्छा व आखिरु दअवान अनिल हम्द। A student sets up, guys अब इस बार है हाइड्रोब्रोमिक और अमोनिया। हाइड्रोक्लोरिक की बजाय हाइड्रोब्रोमिक है। तो अब आपका, उसको नहीं फंसाओ, मुझे पता है तुम बात कर। अब 80 + 1 81 है ना ये, और ये 17 है। गाइस अब तो बता दो कौन लाइटर है, बट वहां से शुरू नहीं करना। क्यों? पहले काइनेटिक पार्टिकल थ्योरी का ड्रामा लिखना होगा। क्या लिखोगे? लिक्विड। सो after some time the solid ammonium bromide is formed. Okay, using kinetic particle theory, explain this. First the liquid ammonia evaporates. First the liquid ammonia evaporates. किधर से? From the cotton wool, as they have enough क्या? As these molecules have enough kinetic energy, then they are able to overcome the attractive forces, and they separate and they are diffusing and are moving random motion, continuous motion from a region of what? Overall, and then they meet and react with क्या? And then they meet and react with क्या? दूसरी तरफ से कौन निकला होगा? HBr, हाइड्रोजन ब्रोमाइड, हाइड्रोब्रोमिक नहीं, हाँ जिस तरह HCl है, हाइड्रोजन ब्रोमाइड, resulting in the formation of what? अब आप कर लेंगे ना ये वाला तो। अच्छा, और हाँ नहीं, and ammonia is moving faster because of the low MR, and HBr is moving slowly because of the higher MRG. क्या? That's wrong. Vapors का नाम लिखना होगा हाइड्रोजन ब्रोमाइड, लिक्विड का नाम लिखना होगा हाइड्रोब्रोमिक। जिस तरह HCl एक्वस को क्या बोलेंगे? हाइड्रोक्लोरिक, बट अगर HCl गैस हुआ तो क्या बोलेंगे? हाइड्रोजन क्लोराइड।
A syringe is filled with 70 cm cube of ammonia gas. बेटे मैं तुम्हारा याद है मुझे गुड़िया, मैं कैलकुलेशन कराऊंगा, फिक्र नहीं करना. अच्छा, a gas syringe is filled with 70 cm cube of ammonia. अब है, the pressure on the plunger is increased. Pressure is inversely proportional to क्या? Volume of the gas. Yes or no? That's called which law? But इसको लिक्विड पे अप्लाई मत करना गधों की तरह, ये गैस के लिए है. हाँ, बच्चे लिक्विड पे भी लगाते हैं, खूब मजे से बोलते सर आपने कहा था प्रेशर बढ़ेगा वॉल्यूम का. बेटा ये लिक्विड है. ओ शिट सर, मैं लिख के आ गया. ओ शिट. तो भाई क्यों लिखा? हाँ बाद में आते हैं, पता है. अरे भाई वो लिक्विड के लिए नहीं है, वो गैस के लिए है. So use kinetic particle theory. Why the volume decrease? लेकिन क्यों? प्लंजर पे अप्लाई करने का मतलब है P अप्लाई किया है, तो P का आप बताओ, दबाने का मतलब है you are applying pressure. तो because of the increase in pressure, particles come closer together. आपने प्रेशर का वर्ड नहीं लिखा, जीरो. या पर बाकी सब स्टोरी सही है, बट क्या मिसिंग पार्ट था? आप दबा रहे हो किसी चीज को तो आप प्रेशर बढ़ा रहे हो, ये समझो. So when the pressure is increased, the volume of gas decreases and the particles come closer together. अच्छा जी, यार this is now easy. नहीं, इसका सिर्फ last part. या इसका सिर्फ मुझे लास्ट पार्ट करके दिखाइए. Explain why the volume of hydrogen produced is approximately the double part. Muscle memory. किसी की पिटाई की है? Why the ये करना तो नहीं है ये वाला part. Explain why graphite conducts electricity. It has delocalized. Give one another property of graphite. It is an inert electrode and doesn't take part in kya, and doesn't react with electrolytes. It is inert and it doesn't react with the electrolyte. G 3 मैंने कहा था ना आपको, क्या आप हाफ एन आवर का बोलते हैं, आप है क्यों कर रहे हैं यार? हाँ 3 है, ठीक है, वरना दूसरे बहुत लेट हो जाएंगे फिर. गाइस आपका मेरा 1 घंटे का साथ रह गया है. एक्सक्यूज मी, एक और बात भी सुन लें. यू गोना रिसीव, आज ही एक ईमेल आएगा. दोज हु वांट टू डू केम के मल्टीपल चॉइस वो यस मार्क करेंगे. Those who doesn't want to do will mark it cross करके. Those who want to do ADP mark करेंगे, और जो नहीं करना चाह रहे हैं वो आप जो जिनका नहीं है या जो भी है, आप बात सुन रहे हैं मेरी, तो वो फॉर्म को सही फिल करके मुझे दे देना ताकि स्ट्रेंथ पता चल जाए. ठीक है ना? ओके. ताकि अगर यही हो रही हो तो फिर हम ना जाए किधर, क्योंकि जरूरत नहीं है फिर, बिकॉज यहाँ बैठ जाएंगे फिर. क्योंकि अगर नंबर ऑफ किड्स ही कम है, हम क्या खाली एडीपी के लिए जाएंगे तो क्या आप हजार रुपए थोड़ी रोज देंगे यार. एक्सक्यूज मी, अब आपको ये भी तो नहीं आता. अब इसका आंसर बड़ा टेक्निकल है. 4OH negative gives 2H2O plus 2H2O. Excuse me, guys. और हाइड्रोजन वाली इक्वेशन को कंपेयर करें. और फिर क्या होगा बताइए? यहां 2 आएगा. अब इसमें मसला क्या है? अगर आपने बैलेंस नहीं किया तो आप इक्वेशन के थ्रू एक्सप्लेन नहीं कर सकेंगे. 4 इलेक्ट्रॉन का लॉस, तो इधर क्या करना पड़ेगा? 4 करना होगा. 2 2s are 4H plus 2 2s are 4E 2 1s are. ठीक है यार, स्टॉप करो ना यार.
तो हम क्या बोलेंगे? At cathode 4 moles of electrons liberates 2 moles of hydrogen, whereas at anode 4 moles of electrons produce 1 mole of oxygen. इस तरह वर्ड्स में लिखना था. At cathode 4 moles of electron produces what? 2 moles of hydrogen, whereas at क्या? Anode 4 moles of electron produces 1 mole of oxygen. ये बच्चों से नहीं हुआ था, according to examiner. I don't know आपसे होता था कि नहीं. 2 students set up a tube as shown. Concentrated height. अब ये हो जाएगा. यहां से कौन? लेकिन अब ब्लू लिटमस कैसे होगा बताओ? Concentrated hydrochloric acid produce hydrogen chloride. Concentrated hydrobromic acid, both are acidic. Few minutes later, the litmus paper in one turns red. 7 minutes later, the second one also turns red. But पहले ये क्यों red हुआ? HCl is lighter. किस तरह? उसका MR निकाल लेंगे. 36.5. HBr का क्या होगा? अब आप खुद लिखें जल्दी से. How use the kinetic theory? यार अब आप लिख लेंगे. Higher concentration to lower, पर कौन पहले भागेगा? या why? इसका अच्छा चलो इसके बाद आपका ब्रेक. यार इस सवाल के बाद I swear इस सवाल के बाद using kinetic particle theory. यार प्लीज. हाँ अली हसन क्या करना है उसका? अली हसन कौन है? अली हसन या अली हसन? उसके पेरेंट्स बुला रहे हैं नीचे. भाई हमारे पास नहीं है अली हसन. बोले आप खुद फोन करें और बुला ले अपने बच्चों को. हाँ तुम हो? तुम तो जा सकते हो यार. गाइस अल्लाह हाफिज. 20 डिग्री से हमने क्या कर दिया इसको. तो अब गैस जो अंदर होगी will undergo expansion. Gases expands on क्या? Why the volume is going to increase? वॉल्यूम क्या करेगा? इंक्रीज होगा. क्यों? वो तो उसने लिखा हुआ है. The particles gain kinetic energy and the particles would have gained kinetic energy and are moving faster than before. And as a result, they create pressure. किधर? They create pressure किधर? Against the plunger. Yeah, it creates pressure on the plunger as they spread out. As they spread out and the space between the molecules increases, and that pressure is going to cause the plunger to kya? Move upwards. Okay, चलें आप बैठेंगे लेकिन आप बात नहीं कर सकते. बात कर सकते हैं लेकिन उठ नहीं सकते आप.